Right, wonderful. Welcome everyone. My name is Numair Shahzada. I am the marketing manager at the NIC, and I'm really pleased to introduce you to our session today with the SECP Innovation Office. The SECP is working towards creating a more conducive environment for investing and for startups and businesses in general in Pakistan. We're very grateful for the help they lend towards improving the ecosystem as a whole. And we're so excited to be working with them to bring sessions like this for you on a monthly basis. So do make sure to sign up so that you can get alerted regularly for the sessions. Today we have with us Ms. Maheen Najmi, who is an assistant director at the SECP and a very vetted ACCA member, very youngest chartered certified accountant. So very excited to have her with us today to talk about convertible shares with variable rights and creative financing strategies. So thank you so much for being with us today, Maheen. How are you? Thank you so much, Numair, for such a wonderful introduction. I'm good. I hope you're well as well. Yes, I'm great. So over to you, Maheen. Let's get started. Sure. Okay, so just to start off the webinar, I hope my screen is visible. Yep. Okay, great. So basically, webinar का जो main मेरा purpose था इसका ये था कि I think to make things very simpler for the startups and businesses जो कि बिल्कुल एक जिसे कह लें कि infant stage पे होते हैं. They want to understand कि companies finance या funds raise कैसे करती हैं. What can be the procedure for raising capital, raise करके utilize कैसे किया जा सकता है, उसके अलावा इसके क्या purposes हो सकते हैं, law में क्या provisions हैं, and how shares can be issued with other, different rights and privileges. So basically, as an introduction, SECP ने basically इस time जो है over the last couple of months and over the last couple of years as well, SECP has been introducing a lot of reforms to facilitate the corporate sector through, maybe easing regulations or issuing circulars or directives, जिसके through हमने बहुत आसानी की है businesses के लिए, especially particularly startups. So it is the need of the hour, I must say, क्योंकि companies have been requesting us to, multiple forums, and हमें suggestions receive होते हैं कि sometimes regulations and regulatory frameworks are very stringent, and maybe it should move more towards, a disclosure-based regime or something like that. So this is why SECP has been considering, and it has been always very considerate of all those suggestions. उसकी वजह से हम जो है फिर regulations और rules होते हैं accordingly amend करते रहते हैं. So this webinar is specifically about how the companies raise capital, what kinds of capital they can raise, how they can create rights, shares having varied rights, and how will be they issuing it. So this is just an outline about how we'll go about it. Firstly, as I said, I'll briefly discuss what users or what is the need for the companies to raise capital. And secondly, I'll just briefly discuss how the companies raise capital, like the equity or debt or other modes, and what kinds of share capital does the company law of Pakistan permit. And next, I'll discuss briefly as to how and what kind of shares have varied rights and privileges. Similarly, then I'll discuss the convertibility feature of shares, which is most commonly used by companies now. And then I will discuss the recent reforms introduced by SECP with regard to share capital. And then it will be followed by any suggestions or questions and answers by the audience. So starting off with the very basic thing, why companies need capital, or why when a company ventures into the market, एक startup है, बिल्कुल एक infant business है, तो why would it need capital? It's very obvious, obviously, क्योंकि जब companies start करती हैं या companies बेशक अगर existing भी हैं, so they would need capital to fund their day-to-day business operations, right? They will have to pay back their trade debtors, ठीक है, या उन्होंने कोई asset खरीदना है, they want to revamp their existing products, या वो बाहर जिसे कहते हैं foreign jurisdictions में they want to relocate. तो ये तमाम वो reasons हो सकते हैं. They are not limited. Obviously, the law does not bar a company as long as it is investing that capital into some lawful purpose and some lawful business.
तो ये सिर्फ वो चीज़ें हैं, ये वो पर्पसेस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि नॉर्मली कंपनीज इनको यूटिलाइज करती हैं अपने कैपिटल को. So now the main question which the investors and startups generally have in their minds is how the companies can raise capital as far as company law of Pakistan is concerned. So as of today, company law जो है पाकिस्तान में इस time prevalent, that is Companies Act of 2017. इस टाइम कंपनीज जो होती हैं जनरली जो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. दे रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, अ डेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. So we'll talk about what is equity, what do I simply mean by equity, and what do I mean by debt, or what can be a combination of both. So talking about equity आसान अल्फाज में समझा जाए तो सिंपली ये कि कंपनी जो होती है जिसकी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय कैपिटल होती है, जब बनती है एट द टाइम ऑफ वेरी registration and incorporation, it is decided कि whether it is going to be a company limited by shares or it is going to be limited by guarantee. So we are talking about a company that is limited by shares. तो जब भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बन जाती है तो इन फ्यूचर whenever it needs capital, whenever it needs funds, it will have to raise its capital in accordance with the provisions of Companies Act of 2017. अब Companies Act की प्रोविजन क्या है? I'll just briefly discuss that. सेक्शन 83(1)(a) है कंपनीज एक्ट का जो कि डील करता है राइट इशू को. सिंपली पुट बेसिकली ये चीज होती है कि कंपनीज most of the times they kind of attract funds or they kind of require funds from their existing members, existing shareholders. For example, अगर एक कंपनी है, बिल्कुल एक जो स्टार्टअप होती है, प्राइवेट कंपनीज जनरली प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो दे आर जनरली ओन्ड बाय म्यूचुअल फैमिली मेंबर. जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 फैमिली मेंबर्स है वो ओन कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी. सो राइट इशू कम्स इनटू प्ले, या दिस प्रोविजन और कम्स इनटू प्ले जब एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने ही शेयर होल्डर से कहती है कि हमें फर्दर कैपिटल इंजेक्शन की जरूरत है, बिकॉज वी मे बी वांट टू परचेज दिस एसेट, मे बी वी वांट टू एक्सपैंड अवर एक्टिविटीज टू अनदर जुरिस्डिक्शन मे बी. तो ये वो रीजंस की वजह से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं कि वी नीड मोर मनी, और मे बी द शेयर होल्डर्स इंटेंट या वो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स जो सेम होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है वी विल प्रोवाइड यू फॉर द फंड्स, तो आप इसको एक्सपैंड करें. सो इन दैट केस कंपनी लॉ की जो ये प्रोविजन है जो मैंने भी रेफर की है ये आती है. उस प्रोविजन का आई विल जस्ट गिव अ वेरी सिंपलर ब्रीफ के उस प्रोविजन में होता क्या है. सो व्हेनेवर कंपनी इश्यूज राइट, उसने बेसिकली एक लेटर ऑफ ऑफर इशू करना होता है अपनी सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शनेट में. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट का मतलब सिंपली ये है कि अगर एक शेयर होल्डर एक कंपनी का एग्जिस्टिंग 20% ओन कर रहा है, तो अगर एक कंपनी लेट्स से एक फ्रेश इशू करना चाह रही है 1000 शेयर्स का, तो 1000 में से 20% 200 शेयर्स उसी शेयर होल्डर को ही देगी. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग के आप इसको फ्रेश इशू कैसे करेंगे. कुछ जो मैंने चीज मेंशन की है वो ये है कि सम कंपनीज यूज कैन आस्क के हम जो कंसिडरेशन देंगे, कंसिडरेशन कैन सिंपली बी अंडरस्टूड एज something that you pay to buy something. For example, अगर आप किसी कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं तो you will be paying something in return. उसको कंसिडरेशन कहा जाता है. So companies sometimes ask us कि ये क्या सिर्फ कैश में ही हो सकता है, हम कंपनीज के शेयर सिर्फ कैश में खरीद सकते हैं या कोई और तन कैश भी हो सकता है. So in this case, SECB ने recently एक सर्कुलर के थ्रू भी क्लैरिफाई किया to specifically for private companies and obviously startups. तो उनको कहा कि भाई अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स देना चाहें तो उससे नॉन कैश कंसिडरेशन भी ले सकते हैं. एंड नॉन कैश कंसिडरेशन कैन इंक्लूड any tangible property, intangible property, intellectual property, or any other kind of asset that is not cash, right? So ये तो एक हो गया कि कंसिडरेशन कैसे होती है. सेकेंडली जो राइट इशू के अंदर जो मैंने आपको प्रोविजन बताई है, इसमें जो सेकेंड जो चीज़ है प्राइवेट कंपनीज के लिए जो हमने एक और SECB ने इसी सर्कुलर में क्लैरिफाई की है वो ये है कि प्राइवेट कंपनीज कैन स्पेसिफिकली ऑफर दीज और दीज शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और अगर वो रिनाउंस कर देते हैं या रिनाउंस करने का मतलब ये डिक्लाइन कर देते हैं, अनसब्सक्राइब रहते हैं, तो दे कैन बी ऑफर टू एनीबडी आउटसाइड. तो ये लोगों को प्राइवेट कंपनीज को काफी अरसे से ये इशू आ रहा था कि नहीं, ये शायद ये अंडरस्टैंडिंग थी सिंस द कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 1984 दैट मे बी प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू एनीबडी आउटसाइड. वो सिर्फ हमेशा अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे सकते हैं, उसके अलावा किसी को इंक्लूड ही नहीं कर सकते. सो इट वाज क्लैरिफाइड कि नहीं, आप सबको ऑफर कर लें. वंस दे हैव डिक्लाइंड इट तो अनसब्सक्राइब रहते हैं तो फिर आप नए इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं. इट विल हेल्प द स्टार्टअप्स अ लॉट in attracting outside investment even from the foreign investors as well. So ये एक टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जिसमें कंपनीज राइट इशू करती हैं, उसमें ये प्रोविजन लगती है, दैट इज सेक्शन 83(1)(a. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी कैपिटल.
नेक्स्ट जो मोड होता है जिसे कहने कंपनीज जो अडॉप्ट करती हैं विच इज अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट, दैट इज अदर देन राइट इशू। अदर देन राइट इशू के लिए जो रेलिवेंट प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 83(1)(b ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 83(1)(b एज ऑफ टुडे इट इज ओनली फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को कहा गया है कि जो हमने राइट का मैकेनिज्म इस टाइम भी थोड़ा डिस्कस किया वो ये था कि भाई आपने सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना है उनकी प्रोपोर्शनेट में। So other than right is on the other hand वो ये है कि you go to the new investor directly, right? You don't have to go to your existing shareholders first and then go to the new investors. आप 83(1)(b के अंदर public companies are allowed is subject to approval of SECP and subject to their special resolution जिसके through members की majority approval लेते हैं। उसके थ्रू they can go directly to anybody outside the company, उसको वो funds raise कर सकते हैं और shares issue कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें तो लॉ में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जो कंसिडरेशन होगी जिसके अगेंस्ट इश्यू होंगे वो कैश भी हो सकती है और नॉन कैश भी हो सकती है। नॉन कैश में एसेट किसी तरह का भी इट कैन टेक दी एनी फॉर्म प्रोवाइडेड इट्स लॉफुल। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट इक्विटी कैपिटल जो एज फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न। सेकंड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेकंड मोड ऑफ कैपिटल दैट द कंपनीज यूजुअली यूज इज डेट इन्वेस्टमेंट। Debt investment can simply be understood as, when companies obtain loans or advances or any other guarantees from their shareholders or maybe anybody outside. It can be an associated company, कोई group company हो सकती है, आपके अपनी parent company हो सकती है, or anybody. Directors भी कई दफा लोन देते हैं. So this is what we call as debt investment. और इसमें loans और advances जो होते हैं इसके अंदर secured भी हो सकते हैं, unsecured भी हो सकते हैं. Basically companies act जो है वो बार नहीं करता as such कि आपने इस चीज को इस तरह करना है या कोई लोन्स को उन्हें वो किया हुआ हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब आप कोई डेट इन्वेस्टमेंट किसी तरह की भी एक एसोसिएटेड कंपनी में करते हैं। एसोसिएटेड कंपनी इज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर सिंपली पुट अगर इसको बिल्कुल आम अल्फाज में देखा जाए तो इट इज अ कंपनी जिसमें आपकी 20% स्टेक हो। तो उसमें अगर आप डेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 199 है और उसके अंदर रेगुलेशंस बनी हुई हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो डिस्क्लोजर्स की हैं और आगे शेयर होल्डर्स को क्या डिस्क्लोजर जाना है, पब्लिक को क्या जाना है, एवरीथिंग। उसके अलावा कोई ऐसा कोई बार नहीं है। कंपनीज ये लोन्स ऑब्टेन करती हैं वो भी सेम रीजंस के लिए कि अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। सो दिस इज व्हाट डेट इन्वेस्टमेंट इज अबाउट। नाउ एज फार एज द टॉपिक ऑफ वेबिनार इज कंसर्न, ऑब्वियसली वी वांट टू नो कि शेयर कैपिटल की कितनी काइंड्स हो सकती हैं, काइंड्स होती हैं तो कैसे होती हैं। सो सेक्शन 58 है कंपनीज एक्ट का और SECP ने रेगुलेशंस इशू की हुई हैं इस सेक्शन के अंडर। कंपनीज फर्दर इशू शेयर्स रेगुलेशंस ऑफ 2020। इनिशियली बेसिकली इन 1996 हमारे इशू ऑफ कैपिटल रूल्स थे और इसके साथ एक 2000 की वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ शेयर्स के एक और रूल्स आए थे। दो सेट ऑफ स्टैट्यूट्स थे, एक 96 के रूल्स थे, 2000 के रूल्स आए थे। सो जब कंपनीज एक्ट आया 2017 में, उसके बाद फिर 2018 में ये रेगुलेशंस आई फर्स्ट टाइम, फिर हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की इन 2019 एंड देन फाइनली जो इस टाइम प्रेवलेंट है, जो सेट ऑफ स्टैट्यूट प्रेवलेंट है इशू ऑफ कैपिटल को जो डील करता है, दैट इज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस 2020 जिनका मैंने नाम आइडेंटिफाई किया है प्रेजेंटेशन में। सो एज फार एज दीज रेगुलेशंस एंड दिस सेक्शन इज कंसर्न, अगर आप इंटरनेशनली देखें तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल काफी ज्यादा हो सकते हैं, बट जो प्रेवलेंट है पाकिस्तान में वो ये है कि कंपनीज की जनरली या तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। दीज आर द टू मेन काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल जो कि कंपनीज यूज करती हैं। आई वुड नॉट से जस्ट टू मेन काइंड्स, आई वुड से द टू ओनली काइंड्स जो कैपिटल इस टाइम जो कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि कंपनी लॉ के अंदर भी इन्विजर्ज्ड है और रेगुलेशंस में भी इन्विजर्ज्ड है। सो द सेक्शन 58 या जो रेगुलेशंस हैं ये क्या कहती हैं कि ये इसके अंडर क्या क्या हो सकता है। सो द लॉ अलाउज द कंपनीज कि वो इन काइंड्स के अंडर फर्दर क्लासेस भी बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव अ वेरी ब्रीफ एग्जाम्पल कि अगर एक कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो हर कंपनी जब लिमिटेड बाय शेयर बनती है तो उसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही कंसिडर किया जाता है कि उसके ऑल जितने भी मेंबर्स के राइट्स हैं टू रिसीव नोटिसेस, टू वोट इन द मीटिंग और मे बी टू डाइसेंट इन अ मीटिंग, सारे राइट्स उसके पास होंगे। सो द लॉ अलाउज कि आप उस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के नीचे भी फर्दर क्लासेस बना सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिस मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दी हुई है कि कंपनीज कई दफा ये करती हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के नीचे दे विल क्रिएट टू क्लासेस, फॉर एग्जांपल क्लास ए ऑर्डिनरी शेयर्स एंड क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड देन दे विल से कि हमारी एक क्लास ए जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की है दे हैव ऑल द राइट्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और एक जो क्लास है उसके पास हमने सिर्फ वोटिंग राइट्स भी रखे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हैविंग डिफरेंट राइट्स एंड प्रिविलेजेस।
So this is just a brief introduction के kinds कौन सी इस टाइम अलाउड है कंपनीज एक्ट के अंदर, उसमें क्लासेस होना अलाउड है. इट्स वेरी ब्रॉड बेस्ड. कंपनीज किसी तरह की भी क्लासेस रख सकती हैं प्रोवाइडेड कि उनके राइट्स जो हैं वो बिल्कुल फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ के अंदर हो. Now talking about what kind of differential rights and privileges can a company attach to the shares it issues. Basically जो ये मैंने जो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, again this is not an exhaustive list, या मैं कहूँगी कोई ये limited list नहीं है. This is just based on the precedents or maybe on the based on regulations जो हमारी हैं जिसके अंदर जो कुछ कवर करता है. उसमें कंपनीज क्या करती हैं कि whenever they create another kind in their capital या another class in their capital, they will differentiate between them on the basis of following features. वो features क्या हैं? They can say for example कि हमारी class A और B shares जो ordinary के होंगे, लेकिन उनके सारे राइट सेम होंगे सिवाय इसके कि उनका डिविडेंड का रेट जो है डिफरेंट होगा. लेट्स से वो कहते हैं कि हमारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है क्लास ए बी के सारे राइट सेम है, लेकिन क्लास बी को हम डिविडेंड का रेट जो है वो 20% ही हमेशा देंगे, या कोई डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट होगा, इस प्रॉफिट में से पे किया जाएगा. दे कैन से एनीथिंग. तो इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बट अगेन राइट ऑफ डिविडेंड वेरी हो सकता है. सिमिलरली कंपनीज कई दफा प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करती हैं तो दे कैन अटैच अ राइट विद दोज प्रेफरेंस शेयर्स स्टेटिंग कि उसमें जो डिविडेंड होगा इट विल बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव. नाउ व्हाट इज जस्ट ब्रीफली मेंट बाय क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव डिविडेंड बेसिकली ये होता है कि अगर एक साल में कंपनी के प्रॉफिट नहीं होंगे और कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकी तो वो जो डिविडेंड है वो कंपनी की लायबिलिटी बन के उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज लायबिलिटी जो है वो अक्रूड डिविडेंड आता रहेगा, और जब कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो सारा डिविडेंड इकट्ठा उस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा. दिस इज व्हाट क्यूमुलेटिव डिविडेंड मींस. और नॉन क्यूमुलेटिव अगेन एज द नेम सजेस्ट कि जब प्रॉफिट आएगा कंपनी का तो वो इट विल पे. सो इस बेसिस पे भी कंपनीज वेरी कर लेती हैं कि इस हमारी क्लास के अंदर क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स होंगे, इस क्लास में नॉन क्यूमुलेटिव होंगे. दे कैन डिफरेंशिएट इट ऑन दिस बेसिस. देन द राइट ऑफ वोट कि अगर वो कहें कि एक हमारी क्लास, जिसका मैंने एग्जांपल दी कि एक क्लास हमारी नॉन वोटिंग है और एक वोटिंग शेयर्स की है, तो दैट वुड बी अ डिफरेंस बेस्ड ऑन दी राइट ऑफ वोटिंग. इसके अलावा कंपनीज कई दफा ये भी करती हैं कि एक दफा ये कह दें कि क्लास हमारी कंप्लीटली नॉन वोटिंग होगी, और एक दफा ये भी कह लेते हैं कि कई दफा वो मेंशन करते हैं अपने राइट्स में कि हमारी एक क्लास होगी जिसके पास डिस्प्रोपोर्शनेट राइट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल जनरली होता है ये कि एक शेयर जिस शेयर होल्डर के पास होता है उसके पास एक ही राइट, एक ही वोट होता है मीटिंग के दौरान. तो कई दफा डिस्प्रोपोर्शनेट वो बना लेते हैं राइट्स के. फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसके पास 10 वोट होंगे उसकी जगह में. तो दिस इज आल्सो अ डिफरेंशियल राइट या प्रिविलेजेस जो कंपनीज अटैच करती हैं यूजुअली. सिमिलरली इसके अलावा जो राइट्स हो सकते हैं, कई दफा कंपनीज डिसाइड कर लेती हैं कि ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर्स जो है ये फ्यूचर में अगर हम कभी राइट इशू करेंगे, जो भी हमने राइट इशू डिस्कस किया, वो उसके लिए एंटाइटल्ड होंगे कि नहीं होंगे. अगर ये कंपनी वाइंड अप कर जाती है विच मीन्स लिक्विडेट हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो उसकी जब सारी वो वाइंड अप हो रही होगी, एसेट्स बिक रहे होंगे, तो उसमें से जो सरप्लस फंड्स होंगे उसमें कितनी पार्टिसिपेशन वो करेंगे, ये वो चीजें जो इंक्लूड करते हैं. देन कम्स द कन्वर्टेबिलिटी फीचर. कंपनीज क्या करती हैं कि दे अटैच दिस क्लॉज और दिस फीचर विच वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन फ्यूचर स्लाइड्स. और उसमें वही करती हैं कि एक क्लॉज अपने इंक्लूड कर लेते हैं अपने आर्टिकल्स में या अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कि ये शेयर्स जो हैं इन फ्यूचर एक डिफरेंट काइंड या डिफरेंट क्लास के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं. राइट. फॉर एग्जांपल कंपनी ज्यादातर ये वाली क्लॉज प्रेफरेंस के साथ कि वो शेयर होल्डर्स को जब उनसे फंड्स ले रहे होते हैं कहते हैं कि वी हैव इशूड यू प्रेफरेंस शेयर्स बट यू हैव द ऑप्शन कि, और वी हैव द ऑप्शन, द कंपनी कैन हैव द ऑप्शन, या शेयर होल्डर का ऑप्शन हो सकता है कि इस फ्यूचर डेट पे इस मैकेनिज्म के थ्रू जो डिफाइन कर लेते हैं उस पे आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स में आप हमारे से ऑर्डिनरी शेयर्स ले सकते हैं, आप हमारा कॉमन शेयर होल्डर बन सकते हैं. सो दिस इज वेरी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स जब वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे होते हैं. अनदर फीचर जो प्रेफरेंस शेयर्स के उसमें केस में आता है ज्यादातर वो रिडीमेबिलिटी का आता है कि द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. उसका रिडीमेबिलिटी का मैकेनिज्म भी दिया हुआ होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में, और कई शेयर्स होते हैं वो दे आर इररिडीमेबल कि जो रिडीम नहीं होंगे. Companies also include some time barred rights. For example, they'll say कि हम ये जो class of kind issue कर रहे हैं, this is based generally जितने भी मैंने यहाँ rights और privileges लिखे हैं, they always stem from any shareholders agreements the companies can have. और हमारे पास जितनी practices आती हैं companies की, वो they have maybe foreign shareholders या कोई joint ventures हो रहे होते हैं, maybe between the government or any other private sector party, और वो उसमें decide ये कर रहे होते हैं कि for example अगर हम एक project कर रहे हैं, हम एक power plant लगा रहे हैं,
तो हम ये 8 सालों के लिए फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, तो हमारे 8 सालों के लिए राइट्स होंगे. दिस इज मीन बाय टाइम बाउंड राइट्स. सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो काफी लोग कंपनीज हमसे क्यूरीज में भी पूछते रहते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमसे पूछते हैं कि व्हाट आर द हैविंग और फॉर क्रिएटिंग क्लासेस ऑफ शेयर राइट्स. अगर एक कंपनी चाह रही है कि आई डिफरेंट काइंड या डिफरेंट क्लास हो मेरे शेयर कैपिटल के अंदर, तो क्या कंडीशंस हैं और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दे हैव टू फॉलो. सो हैविंग और क्रिएटिंग अ क्लास और काइंड जिसके राइट्स डिफरेंट हैं compared to what the rights are given in the Companies Act, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो बहुत सिंपल है. वो सिंपल ये है कि आपकी एसोसिएशन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, यू कैन से, जो कंपनी है तो इट हैज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट हैज एन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें सारा कुछ डाउन होता है. इसकी मीटिंग्स ऑफ मेंबर बोर्ड मीटिंग्स के बारे में, जनरल मीटिंग्स के बारे में, दिस इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंडीशन ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल लास्ट में एक कंपनी का ऑथोरिटी का क्लॉज आता है. उसमें क्लॉज में आइडेंटिफाई हुआ हो कंपनी के शेयर कैपिटल इन क्लासेस या काइंड्स में डिवाइडेड है, राइट. हिस्टोरिकली जब कंपनीज बनती थी बिफोर द हिस्टोरिकली कंपनीज ये करती थी कि उनके कैपिटल में जो क्लॉज होता था मेमोरेंडम एसोसिएशन में, वो क्लॉज ये होता था कि दे वर अलाउड, इस तरह वर्डिंग होती थी, कंपनीज ऑथराइज्ड टू डिवाइड ऑथराइज कैपिटल इनटू एनी अदर काइंड और एनी अदर क्लास. तो वो भी इट वाज सूट. आज जितनी भी कंपनीज बन रही हैं, नई कंपनीज बन रही हैं, उनको जो है हम रेकमेंड ये करते हैं, जो स्टार्स भी और इवन एट हेड ऑफिस हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि आप उसमें एक्सप्लिसिटली लिखवाएं कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लेट्स से अगर आप कहते हैं कि हमारा ऑथराइज कैपिटल जो है वो 1 मिलियन का होगा, तो यू विल से कि हमारे जो है वो 5 लाख जो होंगे ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स होंगे. तो ऑथराइज कैपिटल इज जनरली दी क्वेश्चन दैट इज अवेलेबल फॉर द कंपनीज, जिससे वो आगे फिर फ्रेश कैपिटल इशू करते हैं, उनके पास इतनी लिमिट होनी चाहिए. तो उस लिमिट वाले क्लॉज में ये मेंशन होगा कि आपके कौन कौन सी काइंड्स क्लासेस में डिवाइडेड है. This is just one condition, and this is very simple और कंपनीज जनरली फॉलो करती हैं. सेकेंड कंडीशन जो कि कंपनीज को थोड़ी सी इसमें कई दफा जिसे कह लें कि कंफ्यूजन आती है, एम्बिग्विटी आती है, बट इट इज वेरी क्लियर अंडर द कंपनीज एक्ट. उसका सेक्शन मैंने यहाँ रेफर भी किया है, दैट इज सेक्शन 36 एंड सब सेक्शन 6, जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर ये करता है कि जब भी कोई कंपनीज अपनी क्लासेस या काइंड्स कोई भी नई बनाती हैं, लॉ डज नॉट बार इट, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंडीशन डालें, और जो मेन कंडीशन है वो आपके ऊपर ये है कि आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्लिसिटली लिस्ट डाउन करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, इन्यूमरेट करने हैं कि क्या क्या राइट्स अटैच्ड हैं. If you have any different voting rights attached to a particular kind of class, you will have to write it down in your articles. If you have any different right to dividend, right of participation, या किसी तरह का भी कोई redeemability का right है, तो वो it has to be mentioned in the articles of association. This is what the law requires. कि आपके articles में बड़ा explicitly mentioned हो. This is the main condition. ये कंडीशंस हो गई. देन कम्स द कंडीशंस के जब कंपनीज एक्चुअली वो शेयर्स इशू करती हैं. वो सिर्फ कंडीशंस जो हमने 2 डिस्कस की, दीज वर ओनली रिलेटेड कि जब कंपनीज फर्स्ट टाइम कोई चाह रही है कि दे आर इंटेंडिंग कि हमने काइंड्स क्रिएट करनी है, क्लासेस क्रिएट करनी है, तो वो 2 कंडीशंस उसके लिए एप्लीकेबल थी. सो नाउ वी आर स्टैंडिंग कि अगर कंपनी कहती है कि वी इंटेंड टू इशू फ्रेश शेयर्स which have different rights or privileges, तो what is the requirement, law क्या कहता है. उस केस में जो हमारी रेगुलेशंस है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताई, उसकी रेगुलेशन 6 है दैट स्टिपुलेट्स फ्यू कंडीशंस. उसमें एक मेन कंडीशन ये है कि जो कि आई थिंक हर कंपनी के हर डिसीजन में आती है, दैट इज कि बोर्ड जो कंपनी का है दैट इट हैज डिसाइडेड, और इसका डिसीजन जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, विच कंप्लीटली स्टेट्स, और उसमें जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमारे रेगुलेशंस में प्रोवाइडेड है कि क्या क्या होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, राइट्स क्या अटैच होंगे, आप जो शेयर्स इशू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं या आउटसाइड दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, द बोर्ड रेजोल्यूशन शुड स्टेट दैट. ये कंडीशंस है जो कंपनी पे एप्लीकेबल है. इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन है. स्पेशल रेजोल्यूशन एज आई अर्लियर डिस्कस्ड कि इट जनरली मीन्स के कंपनीज के जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो 3/4 मेजॉरिटी से अपनी जनरल मीटिंग में एग्री करें कि वी वांट टू इशू अ शेयर इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लास, ठीक है. देन एक जो कंडीशन एक रेगुलेशंस ने लगाई भी है वो एक ये भी है कि कंपनीज कैन नॉट वेरी द टर्म्स एंड कंडीशंस और एनी प्रिविलेजेस ऑफ दीज शेयर्स विदाउट seeking approval from those holders.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि कंपनीज को कई दफा लगता है कि अच्छा हम शायद एक दफा ये कैपिटल हमने फर्दर इशू कर दिया और उसके राइट्स हमने फॉर एग्जांपल नॉन वोटिंग अपने आर्टिकल्स में लिख दिए थे कि ये क्लास के नॉन वोटिंग शेयर्स हैं, इसके राइट्स वोटिंग नहीं है, बट इन द फ्यूचर वी कैन टोटली चेंज इट और हम इसको दोबारा वोटिंग कर सकते हैं, अपना राइट्स अमेंड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑन दी ऑफ द कंपनी या सोलली बोर्ड की डिस्क्रिप्शन पे नहीं है। उसमें एक कंडीशन डाली हुई है मैंडेटरी कि दे हैव टू गो टू दोज होल्डर्स जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होंगे या जिनके पास क्लास बी के शेयर्स हैं, आप उनसे कॉन्सेंट लेंगे कि आर दे एग्रीड ऑन दिस वेरिएशन और नॉट। दिस इज अनदर कंडीशन जो इस टाइम रेगुलेशंस में प्रेवलेंट है। Now talking about the convertibility feature जो शेयर्स के साथ होता है, मैंने शुरू में थोड़ा सा ब्रीफली बताया कि कंपनीज क्या करती हैं कि sometimes they issue one kind of shares, for example they'll say कि हम आपको preference shares issue कर रहे हैं और in future जो है इस 5 साल के बाद 10 साल के बाद they will be converted into ordinary shares, और ordinary shares convert होने के बाद they will be treated as a common shareholder, उनके पास सारे जो लॉ के राइट्स होंगे, मेंबर्स के जनरल मीटिंग में आने के, जनरल मीटिंग में डाइसेंट करने के, हर तरह की अप्रूवल के जो राइट्स होंगे वो उनके पास आ जाएंगे। सो दिस जनरली इज यूज्ड बाय कंपनीज जो जॉइंट वेंचर्स वगैरह में जा रही होती हैं या जो कंपनीज इनिशियल स्टेजेस में होती है कमेंसमेंट में, वो ये जनरली यूज कर रही होती हैं। इसके अलावा कंपनीज ये भी करती हैं, ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफली यहाँ पे मेंशन किया, इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस वेबिनार बट आई मेंशनड इट बिकॉज सम कंपनीज माइट हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि कंपनीज जो है डेट सिक्योरिटीज भी इशू करती हैं, जो कि इसमें रिडीमेबल कैपिटल भी आ जाता है हमारे सेक्शन 766 के अंडर, जिसमें डेट सिक्योरिटीज में होता है कि कंपनीज कहती हैं कि हम इशू तो फॉर एग्जाम्पल दे विल बी इशूइंग टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, और उसमें वो कहेंगे कि जो होल्डर है या जो इशूअर है कंपनी, उसके पास राइट होगा कि वो इन फ्यूचर इस डेट को, इस लोन को कन्वर्ट कर सकता है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो दिस इज आल्सो अ मोड दैट इज फॉलोड बाय कंपनीज इन सम केसेस। सो जब जिस केसेस में डेट सिक्योरिटीज ऐसी इशू होती हैं जिसके अंदर कन्वर्टेबल राइट होता है, इसको फ्यूचर में वो कर सकते हैं इनटू कन्वर्ट इनटू शेयर्स, उसमें बेसिकली शेयर होल्डर्स को फायदा ही हो जाता है कि इट विल कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम डेट सिक्योरिटीज, कि वो एक टाइम पीरियड के लिए उनको डेट पे रिटर्न भी मिलता रहेगा एंड इन अ फ्यूचर डेट वो शेयर होल्डर भी बन जाएंगे, तो दे विल मैनेज एबल टू बेटर मैनेज देयर रिस्क एंड रिटर्न्स। So companies क्या करती हैं, what they usually do is कि whenever I talked about those conditions जो उन्होंने classes create करते हुए follow करनी है, which is कि they have to identify कि क्या rights attached हैं, क्या privileges attached हैं with all their shares and classes and kinds of those shares। तो उसमें वो ये क्या करते हैं कंपनीज कि वो अपनी उन टर्म्स एंड कंडीशंस या उन राइट्स एंड प्रिविलेजेस के दरमियान या उनके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि these preference shares or maybe these class B ordinary shares will be convertible to another class of shares in this date। For example they'll say कि हम अपने ये class B shares जो है class A में convert कर लेंगे after 5 years, और maybe हम जो है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट कर लेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, या कई दफा मैंडेटरी कन्वर्जन भी डाली होती है क्लॉज कंपनीज ने, एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स। द पॉइंट इज दैट लॉ डज नॉट बार एनी कंपनी कि आप इसको कन्वर्जन को किस टाइम तक रखें, कितना टाइम तक रखें, इट शुड बी वेरी मच जस्टिफाइड जब आर्टिकल्स में डल रहा हो, ताकि ऑब्वियसली एससीसीपी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि किसी भी इन्वेस्टर का, किसी भी शेयर होल्डर का राइट जो इन्फ्रिंज ना हो रहा हो। सो ये अगेन मैंने मेंशन प्रेफरेंस शेयर्स का किया कि कंपनीज क्या करती है, हमारे पास ज्यादा कन्वर्टेबिलिटी का जो फीचर आता है वो प्रेफरेंस शेयर्स के तौर पे ही आ रहा होता है। कंपनीज क्या करती है कि whenever they issue preference shares they will write this right in their articles of association by stating कि हम ये preference shares जो हैं after a period of 7 years let's say we will convert these preference shares in on a 1-to-1 ratio। 1-to-1 ratio simply means कि एक preference shares के बदले आपको एक ordinary share मिल जाएगा, and they will decide a conversion price कि जब आप ऑर्डिनरी शेयर ले रहे होंगे, जब कन्वर्ट करेंगे हम आपका एक का एक शेयर देंगे, तो उसके अगेंस्ट आपने कितने एडिशनल पैसे देने होंगे पर शेयर। समटाइम्स इट इज जस्ट अ फेस वैल्यू, समटाइम्स इट इज ऑन डिस्काउंट एंड समटाइम्स इट इज ऑन सम प्रीमियम, तो वो हो सकती है। देयर इज नो सच बार। सो दिस इज द कन्वर्टिबिलिटी फीचर। नाउ आई वाज जस्ट गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड के रिफॉर्म्स क्या इंट्रोड्यूस्ड है एससीसीपी ने जो किए हैं। So recently, as we might all know कि SCCP जो है वो अपनी regulatory frameworks को, rules, regulations को काफी अच्छा adopt कर रहा है to the changing circumstances of the businesses।
जो इश्यू ऑफ कैपिटल जहां तक कंसर्न्ड है उसमें एससीसीपी ने, जिस तरह मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट में बताया कि हमारे काफी पुराने स्टैट्यूट्स थे, लॉज बने हुए थे, रूल्स बने हुए थे 1996 के, 2000 के, जिसको हमने 2018 में टोटली रिवैम्प किया। सारी चीजों को इकट्ठे, कई गाइडलाइंस थी जो स्कैटर्ड थी, कई डायरेक्टिव स्कैटर्ड थे, उन सबको एक जगह कंसोलिडेट करके चीजें जो है स्ट्रीमलाइन करके और बहुत सी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स जो थी वो एलिमिनेट की। सिमिलरली फिर हमने 2018 की रेगुलेशंस को फर्दर रिव्यू किया। 2019 के अंदर कुछ लिस्टेड कंपनीज पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी, बोनस इशू वगैरह पे, वो हमने उनको भी ओमिट कर दिया जस्ट टू फैसिलिटेट द पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर मोर, और उसमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स डाल दी गई सिर्फ। एंड देन 2020 में फिर हमने उसको मजीद जैसे आप कह लें कि उसको फर्दर रिवैम्प किया और हमने काफी और जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने कट डाउन किया जस्ट टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन फॉर द कंपनीज and specifically for the startups. Similarly, recently in March 2021, SCCP ने एक circular issue किया, जिसका मैंने स्टार्ट में बताया। कंपनीज को ये बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम आ रहा था, not just after the promulgation of the Companies Act, but also since the Companies Ordinance of 1984, कि अगर एक कंपनी राइट इशू कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो क्या वो नॉन कैश कंसिडरेशन नहीं कर सकती। इट वॉज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, या आप कह लें कि एक आइडिया था कि शायद नॉन कैश कंसिडरेशन जो है एसेट्स के अगेंस्ट हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो दिस वाज क्लैरिफाइड बाय एससीसीपी कि आप कर सकते हैं राइट इशू, कोई भी कंपनी कर रही हो, इट कैन बी इशूड फॉर आइदर कैश और नॉन कैश। Similarly, as I earlier briefed, we were also clarified through the circular कि आप potential investors को भी private companies, जो startups generally private companies होती हैं, तो they can also issue those shares, or they can also kind of include the potential foreign investors or maybe the local investors by offering them shares. लेकिन उन्हें simply करना ही होगा कि they will have to offer those shares to their existing shareholders. ये आज की डेट का जो रिफॉर्म है that is prevalent today. Similarly, फिर हमने एक अप्रैल 2021, which is also very recent, हमने उसमें एक प्रेस रिलीज एससीसीपी ने इशू की जिसमें हमने क्लैरिफाई किया और अलाउ किया कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कर सकती हैं, which is a very separate matter, but this is also a reform that was introduced by SCCP recently. Another, I think, very favorable, very pro-business amendment or very pro-business kind of a reform that has been introduced by SCCP in November 2021. This is notification has been issued on November 10, 2021. और इसमें बेसिकली जो मैं इन रेगुलेशंस की आपको स्टार्ट से बात करती आ रही हूँ, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस 2020, उसमें फर्दर हमने अमेंडमेंट्स कर दी हुई हैं। अर्लियर दे वर प्लेस्ड फॉर पब्लिक ओपिनियन, हमें पब्लिक ओपिनियन काफी स्टेक होल्डर से आया जिसको हमने कंसिडर किया, और उसके कंसिडरेशन में सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, स्टेट बैंक को भी इवन ऑन बोर्ड लेके हमने फिर रेगुलेशंस में अब अमेंडमेंट कर दी हैं। उस अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है वो ये हुई है कि जितनी भी कन्वर्जन की मैंने अब स्टार्ट में ऊपर बात की कि एक क्लास से दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, दूसरी काइंड से पहली काइंड में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, दिस वाज नॉट अलाउड सिंस 2000 अंटिल नवंबर 2021। तो हमने बेसिकली अब एक्सप्लिसिटली अलाउ किया है कि कोई भी क्लास के शेयर्स दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी काइंड के शेयर्स दूसरी काइंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग थी, लॉ की जो स्पिरिट थी, लॉ की लैंग्वेज थी, कंस्ट्रक्शन थी, वो ये थी कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने बड़ा एक्सप्लिसिटली बताया कि आप ऑर्डिनरी शेयर्स को भी आगे दूसरी क्लास से एक क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस को भी ऑर्डिनरी में कर सकते हैं, ऑर्डिनरी टू प्रेफरेंस भी कर सकते हैं, इट कैन बी एनी वे अराउंड। तो दिस वाज अनदर यू कैन से इंस्ट्रूमेंटल अमेंडमेंट जो हम इसके थ्रू लेकर आए हैं। सेकेंडली, जो कंपनीज को बड़ी फैसिलिटेशन, इससे बहुत ज्यादा बल्कि फैसिलिटेशन की है, वो ये था कि सिंस द इशू ऑफ कैपिटल रूल्स जो हमारे थे, वेरिएशन कैपिटल रूल्स 2000 के थे, और 2018 तक भी 19 तक भी हमारे जो रेगुलेशंस इन प्लेस थी, उसके अंदर जब भी कंपनीज डिफरेंशियल राइट्स के शेयर्स इशू करती थी तो दे हैड टू सीक अप्रूवल ऑफ एससीसीपी। तो वो अप्रूवल जो है एससीसीपी का, अब हमने उसकी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। सो नाउ द कंपनीज विल बी इशूइंग द शेयर्स बाय कंप्लाइंग द कंडीशंस जो मैंने अभी थोड़ा पहले जिक्र किया, जिसमें मेमोरेंडम में प्रोवाइडेड होगा, आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, मेंबर्स एग्री कर लेंगे और सारे राइट्स इंक्लूडेड होंगे, एंड दे विल बी एबल टू इशू दोज शेयर्स विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ एससीसीपी। This will obviously, kind of facilitate the startups as well, क्योंकि obviously इनको फीस भी देनी पड़ेगी, पूरे रेगुलेटरी प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा एससीसीपी का अप्रूवल सीक करने के लिए। So this is also very facilitative for the sector, corporate sector.
Another amendment जो हमने रेगुलेशन के थ्रू लेकर आए हैं वो कंपनीज को काफी पहले भी काफी अरसे से इशू आ रहा है, सिंस द कंपनीज एक्ट हैज बीन प्रोमलगेटेड इन 2017। तब से ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको ये जो नॉन कैश कंसिडरेशन जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ कि एसेट्स के अगेंस्ट दे सकते हैं, किसी तरह की भी एसेट के अगेंस्ट दे सकते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन का मैकेनिज्म नहीं था, जो कि अब हमने बता दिया है। हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल, तो उसकी आप वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ले सकते हैं, जिसको आईकैप ने, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, उसने QCR रेटिंग दी हुई हो, आप उससे करवा सकते हैं। अगर आपका कोई लैंड, बिल्डिंग या प्लांट और मशीनरी के अगेंस्ट शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यूएशन होगी इट विल बी सर्टिफाइड और वैल्यूड बाय अ कंसल्टिंग इंजीनियर दैट हैज बीन लाइसेंस्ड बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ठीक है जी। सो दीज आर दी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स जो हमने इंट्रोड्यूस की जस्ट टू गिव another flavor of what is happening internationally। हमने इसको देखा कि जब भी हमने ये अमेंडमेंट्स इशू की थी तो इसमें जो कन्वर्जन वाला मेन जो चीज थी कि ये क्यों हमने डाला, और ये जरा लोगों के क्वेश्चंस भी आते थे, इश्यूज भी थे। दूसरा ये था कि हमने देखा कि इन सिंगापुर, इन ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया जो है ये तीनों जुरिस्डिक्शंस में दे वर एक्सप्लिसिटली अलाउड to issue any differential shares rights, any shares with carrying differential rights, उन conversion उनको आपस में convert करने की वहाँ allowed था। So पाकिस्तान में allowed नहीं था, which was allowed later on, जो अब हमने उसके regulations के through कर दिया। Last but not the least, जो हमने recently SCCP ने एक बड़ा रिफॉर्म किया है, that is again in the November 2021, और इसमें बेसिकली हमने ये किया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 इस टाइम नेशनल असेंबली ने जून 2021 में पास किया, और नवंबर 2021 में जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुआ रिसेंटली उसके अंदर ये पास हो गया। इट्स जस्ट अवेटिंग दी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स एंड प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर्स, उसके बाद ये भी इनैक्ट हो जाएगा। उसमें जो एक बड़ी चेंज हम लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि प्राइवेट कंपनीज को, जिस तरह मैंने आपको थोड़ा मैकेनिज्म लंबा था कि उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पहले जाना है, तो इट हैज बीन kind of very much shrunk down। उसमें ये होगा कि प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली नए इन्वेस्टर्स के पास जा सकती हैं and they will be able to issue those shares to these new investors directly for any kind of consideration, either cash or non-cash। सेकेंड जो मेन अमेंडमेंट हम इसमें एक्ट के थ्रू लेकर आएंगे जो कि जल्द इंशाल्लाह इनैक्ट हो जाएगा, उसमें ये भी है कि इस टाइम जो एक एक्सप्रेसिव प्रोविजन प्रोवाइडेड थी कंपनी लॉ में, वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए थी कि वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कर सकती हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन जब ये एक्ट इनैक्ट हो जाएगा अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके बाद हर तरह की कंपनी, सिंगल मेंबर हो, प्राइवेट कंपनी हो, वो कर सकेंगी ESOS ऑफर। उसके लिए प्रॉपर हम रूल्स और रेगुलेशंस, SCCP जो है इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दो रूल्स रेगुलेशंस। जैसे ये एक्ट आएगा उसके बाद हम वो भी नोटिफाई कर देंगे, तो the companies will have a very comprehensive mechanism के वो क्या फॉलो करें, कौन सी कंडीशंस फॉलो करें and everything। तो it will be very much regulated के ज़्यादातर it will be very disclosure based, ताकि कंपनीज को और स्टार्टअप्स को जनरली जो है वो उनके लिए stringent ना हो। So these are the reforms which have been introduced by SCCP over the last couple of months and couple of years, I must say, and SCCP I think is very much committed to further adopt its legislations and rules and regulations to facilitate and to kind of support the corporate sector and its growth, because obviously the regulators or specifically in the emerging economies and the developing economies, they play a very important role. So we are very much committed and we look forward to any suggestions or any questions or answers that the participants might have. So over to you, Numair. Right. Thank you so much, Maheen, for such an insightful conversation there. So we have some questions, and I'm just going to pull some of them out, and let's see. Okay, so we've got one here. Can the same shareholder own two different kinds or classes of shares of a company? Yes. It is possible. कई दफ़ा ये कंपनीज ये वाली अरेंजमेंट करती हैं कि वो फॉर एग्जांपल इट हैज़ टू काइंड्स ऑफ कैपिटल। वो ये कहें कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी हैज़ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इट हैज़ अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक ही शेयर होल्डर है उनका जो वो फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर है, तो वो चाह रहा है कि मैं इस कंपनी का क्लास 1 या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी सब्सक्राइब कर लूँ, वो भी मतलब उसमें भी इन्वेस्ट कर लूँ, और ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर लूँ। तो इट इज क्लियरली पॉसिबल अंडर द कंपनी लॉ। Okay. Next question. Ms. Maheen said companies limited by shares issue shares. What about guarantee limited companies having share capital?
Guarantee limited companies are companies limited by guarantee. They do not have share capital. Okay, so I think that answers. Yes, they are limited by guarantee. Section 83 and all the issue of capital regulations, yeah, sections जितने भी मैंने भी refer किए हैं, they are basically relevant for all the companies that have share capital. They can be companies, for example, जो section 42 में licensed होती हैं, they are NGOs, लेकिन उनका capital share capital होता है, तो उन पे भी यही provisions applicable होंगी. जो guarantee limited companies होती हैं, वो बनती guarantee से, they don't have a share capital. बिल्कुल ठीक है. And what if there's no preferred shareholder? Then do they have to take ordinary shareholders' permission to change voting rights? Sorry, can you repeat that question? So it says, what if there is no preferred shareholder? Then do we have to take ordinary shareholders' permission to change voting rights later on? I'm not sure about this question. Does it make sense? Obviously, नहीं, I get the question. I think वो मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि maybe ordinary share capital को ही वो आगे voting rights change करना चाह रहे हैं. तो yes, they can do it. वो basically यही करेंगे. ये कुछ companies ने हमसे queries की हैं इस तरह की कि वो क्या करना ये चाह रहे हैं कि ordinary share capital में ये इसको वो करेंगे ये कि एक class create कर लेंगे जिसमें वो कहेंगे कि we will have one another class जिसके अंदर voting shares, voting rights attach नहीं होंगे. So they will obviously जब वो ये amendment कर रहे होंगे उसके लिए वो ज़ाहिर है जिसमें मैंने condition बताई वो अपने articles में amendment करेंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है वो अपने ordinary shareholders के पास ही जाएंगे क्योंकि preference shareholders तो उनके हैं नहीं. So this is okay. And can a company convert its directors' loans or advances into shares of any kind of class? जी, आई थिंक ये वाला जो डायरेक्टर्स लोन की या शेयर होल्डर्स लोन की जो कन्वर्जन है काफी कॉमन होता है और ज्यादातर ये कॉमन बल्कि प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स में ही होता है क्योंकि ऑब्वियसली जब ये कंपनीज बनती हैं तो दे डोंट गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइडर्स और द वेरी स्टार्ट ऑफ देयर बिजनेस. तो कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको डायरेक्टर्स या उनके शेयर होल्डर्स ही लोन दे रहे होते हैं. तो इन फ्यूचर इवन कंपनी कमेंस भी कर लेती है बिजनेस तो कंपनी की इतनी पोजीशन नहीं होती कि वो उसको पे ऑफ कर सके, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, इतने प्रॉफिट्स नहीं आए होते. तो वो यही करते हैं कि दे एग्री कि ठीक है हमारी ही कंपनी है तो आप हमें इसके अगेंस्ट शेयर्स देते हैं. तो इट इज टोटली परमिसिबल. इनिशियली जब हमारी 2018 की रेगुलेशंस आई थी आफ्टर द कंपनीज एक्ट तो उसमें एक कन्वर्जन ऑफ लोन पे बड़ी डिटेल्ड स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप सिर्फ अदर देन राइट कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्जन के बाद आपने हमें सर्टिफिकेट भी देना है और बैंक स्टेटमेंट्स भी देनी है एंड व्हाट नॉट. तो बड़ी डिटेल कंडीशंस, तो सारी कंडीशंस अब हमने खत्म कर दी हुई हैं और कोई भी कंपनी अपना लोन कन्वर्ट कर सकती है और अगर वो कैपिटल इशू कर रही है तो उसमें से उसने कंसिडर यही करना है कि वो क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सबको दे रही है, सबको प्रोपोर्शनेट दे रही है या आउटसाइड जाके अदर देन राइट का मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म स्टेज द सेम, लोन्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं. Okay, got it. Okay. And is there a minimum limit of shares value for a private limited company? No, there isn't. There isn't. Got it. And could you tell us, Maheen, what is the procedure to issue SAFEs, SAFEs? SAFEs बेसिकली ये जनरल जो इसको टर्म ये आई थिंक काफी लोगों के आई थिंक स्टार्टअप्स के सवाल आ भी रहे हैं और ये हमारी डिपार्टमेंट में होती है मैडम नाजिया उबैद जो आई थिंक डील भी कर रही हैं इसको. सेफ इज जनरली एन एग्रीमेंट आप कहें कि फ्यूचर इक्विटी के लिए एग्रीमेंट होता है. इसमें कोई स्पेसिफिकली जो अगर ये टर्म के तौर पे अगर कंपनीज पूछती हैं या इन्वेस्टर्स पूछते हैं तो वो ये टर्म के नाम से या ये इस सेफ एग्रीमेंट जो कि ये जार्गन यूज होता है उसके नाम से हमारी रेगुलेशंस या लॉ में कवर्ड नहीं है. बट अगर जिस तरह मैंने किया ना कि फ्यूचर में इक्विटी इशू हो सकती है तो ये जनरली कंपनीज फॉलो करती हैं कि जनरल एग्रीमेंट की बात करें कमर्शियल अरेंजमेंट है कि कंपनीज डेट इशू कर लेती हैं और कहती हैं कि फ्यूचर में हम इतने टाइम पीरियड बाद आपको इसके शेयर्स दे. तो ये जनरल अरेंजमेंट तो फॉलो हो रहा है बट एज फार एज एक्सप्लिसिट आप कहें कि परमिशन किसी लॉ में हमारे गिवन है कि सेफ कर सकते हैं तो वो मैं कहूंगी नहीं है. पर जनरली कंपनीज करती हैं कि वो डेट इशू करके दे कैन हैव कन्वर्टिबिलिटी फीचर और वो फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको शेयर्स में. Right. Thank you, Mubariz, for your question. We won't be taking questions on call because often there are technical issues which delay the session further. So if you could just type your questions here, we'll answer them one at a time. All right, moving on to the next question. Can a person subscribe to non-voting preference shares or are such shares limited, restricted to financial institutions? Yes, any person can subscribe. It is not limited to any financial institution. Some shareholders and some companies do ask these questions from us. So मैं थोड़ा
चाह रही थी कि कंपनीज के शेयर होल्डर्स में, मेंबर्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी को नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर देना चाह रहे हैं तो आपसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट को देंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी। आप उसके अंदर कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है, कोई और लीगल पर्सन भी आ सकता है। Right, right. And once Companies Amendment Act is enacted, will private companies be able to issue shares to new investors without approval of SECP? As of today, as far as Companies Amendment Act is concerned, जब वो enact हो जाता है, जो intention है SECP की, obviously since the जो startups का एक तरह का चल रही है, एक ड्राइव चल रही है कि जिसमें हमने facilitate करना है, तो intention SECP यही है कि private companies will be given a certain conditions कि वो follow करें, disclosures दें, shareholders well informed हो, public well informed हो, जो भी करना चाहे, उनको इन्वेस्ट करना चाहे। लेकिन अगर SECP का अप्रूवल होगा तो maybe they will be exempted. We are considering to exempt them, but it will be dependent when the Companies Act will be enacted. लेकिन intention यही है कि उनको relax रखा जाएगा। Right. Okay. Brilliant. Also, we have a question here. If we issue shares on premium, which is higher than their par value, what about taxes? Are there any tax implications, or tax only arises when shareholder disposes or transfers his shares? I think it's purely related to ordinance. Share premium जो है वो specifically Companies Act के अंदर concerned है, covered है। प्रीमियम के ऊपर जो है आप यूटिलाइजेशन को कंपनी लॉ डील करता है। अगर कोई टैक्स implications आती हैं तो I think it's more of a matter related to FBR, I must say. Got it. Got it. And for a startup with limited resources, because we usually deal with startups, what is the best option for them? Option for them to do what? Just generally for shares. Okay, so basically जैसा मैंने स्टार्ट में बताया ना कि कंपनीज जब जनरली स्टार्टअप्स whenever they commence their business, the best option for them is to get further funds from their own existing shareholders. उसका बहुत सिंपल है। जो कंपनी लॉ पे उनको कंप्लाई करना पड़ता है, जो उनको लगता है कि शायद एक एडिशनल रेगुलेटरी बर्डन होगा, तो उसमें कंपनी लॉ भी बड़ा सिंपलर है कि उन्होंने सिर्फ एक लेटर ऑफ ऑफर सिंपल इशू करने अपने शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग उनके शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं से वो पैसे लेंगे, उसके अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। कई कंपनीज ये करती हैं कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, फॉर एग्जाम्पल कई कंपनीज स्टार्ट कर रही होती है, दे डोंट हैव एन ऑफिस प्रेमिसेस, तो वो ये कर लेते हैं हमारे एक शेयर होल्डर के पास एक जगह कहीं प्लॉट है, कोई एक बिल्डिंग है, या किसी प्लाजा में कोई फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट है, तो दे विल ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट उसको शेयर होल्डर फर्दर शेयर इशू कर देते हैं। सो दिस इज कॉमन मैकेनिज्म जो कंपनीज फॉलो करती हैं, कॉमन अब कहने का ऑप्शन है जो ये स्टार्टअप्स फॉलो करती हैं कि टू गो टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। Okay. So is there a link or place on the internet where you could recommend some of our guests today can go to learn more, or maybe something on the SECP website? SECP website is very comprehensive. अगर आप कंपनी अपनी रजिस्टर करनी है तो रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा फुल फ्लेज टैब है, उस पर प्रॉपर वेबसाइट पे जाएं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंडर उसकी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, आई थिंक LLP प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कैपिटल कैसे बनाना है, कैपिटल की फीस इवन कैसे कैलकुलेट करनी है, बड़ा डिटेल गिवन है। सिमिलरली इफ यू वांट टू नो कि क्या रेगुलेशन सिस्टम इन प्लेस हैं तो कंपनी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सामने ऊपर सबसे ऊपर टैब आ रहा होता है लॉज के नाम से। व्हेन यू जस्ट मूव कर्सर टू दैट टैब तो नीचे वो नोटिफिकेशंस रेगुलेशंस के सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट तो आगे जितनी भी लॉज रेगुलेशंस में कोई अमेंडमेंट हुई है वो सारी डेट वाइज सॉर्ट आउट हो रही है। यू कैन आल्सो सर्च ऑन इट, और अगर आपको कुछ चाहिए फॉर एग्जांपल इशू ऑफ कैपिटल का कुछ जानना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन इट। सारे सर्कुलर्स, गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स जो भी SECP इशू करता है वो ऑब्वियसली हमारे सोशल मीडिया पे भी टाइम अगेन आते रहते हैं और सारा कुछ वेबसाइट पे भी प्लेस होता है। Wonderful. Maheen, I think that's enough questions. Though we have one or two others, but they can visit the SECP website for more information. And you're also welcome to email us your questions, which we will forward over to the SECP Innovation Office team and get them answered. So thank you so much, Maheen, for such an informative and thorough session today. I hope our audience gained a lot of value from it, and looking forward to the next session. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. Right, Maheen, have a good evening. And to our Thank audience, you, likewise. Hope you all have a great evening, and do take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.